All okay? Good? Ready? Fantastic. ठीक है. Alright, so everyone, thank you so much for joining with me today. I truly appreciate your valuable time. आपने आपका कीमती वक्त निकाल कर, that to Saturday. It's Saturday today, half day already. You should have gone home by now, right? But unfortunately, आप यहाँ पर stuck हो गए आज stuck हो गए. Unfortunately, because of me. No? Oh, 4 o'clock. Then I think we are absolutely fine to stay back and then do this running without any hesitation, right? And I will not speed up anything so that I don't want to miss out any important points. I will try my level best to cover each and everything, right? The purpose of me joining you today is very simple. मैं आज यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे आपके प्रिंसिपल मैम ने यहाँ पर इनविटेशन दिए थे आने के लिए, इसलिए भी आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप आपकी सोच को बदलें, आप आपके जज्बात को बदलें और आप आपके जिंदगी में बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट्स लाएं और आप आपकी जिंदगी को, आने वाली जिंदगी को खूबसूरत बनाएं. राइट? आर यू विद मी? क्या आप आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्या आज आप आज से उसको फॉलो करने रेडी हैं? कौन रेडी है? हाथ उठाइए. वेरी नाइस, फैंटास्टिक. आई एम सो हैप्पी that you are with me and you want to follow what I'm going to teach you today. Okay? Fantastic. तो मैं जब क्लास 10th का था और आप भी ऑलमोस्ट 60 बच्चे यहाँ पर हैं, क्लास 10th में हैं, और मैं जब आपके एज का था, क्लास 10th में था, तो मैं एक चीज को सुन रहा था उस टाइम पे. In the year 2000, my teachers used to tell me a lot. Class 10th is a, आपके टीचर्स भी बोल रहे हैं, class 10th is a, क्या है वो? Turning point. Class 10th is a turning point in your life. And do you truly believe that class 10th is a turning point in your life? Do you truly believe? Yes or no? Sir. I don't believe. I don't believe class 10th is a turning point of your life. I'll tell you why. Do you want to maybe challenge my thought process? Anyone who wants to challenge? Why you believe class 10th is a turning point? Look, my training session is not just I come here and deliver and then go. No. I want you to interact with me. I want you to exchange information with me. I want you to share your thoughts and ideas with me. Are you with me? Yes? Now I said class 10th is not a turning point in life. Now you said class 10th is a turning point of your life. Now tell me why class 10th is a turning point of your life. Sit, you don't have to stand. Last time is a turning point of life. We actually hear from many teachers here. Actually, when we are after finishing the 10th, we choose a career path after 10th. We go in the path which we choose, and if we are suppose we want to become a doctor, we choose that particular thing, and then we go to a degree and study. Okay. These things happen. Everything is connected. Everything is connected to your life, to your future. Okay? I like that perspective. I like the idea of you thinking everything is connected to your future. Fantastic. Alright, I'll take one from boys. Why class 10 is a turning point? You, Mr. Topper. Sit. You don't have to stand. Everyone rejects 10th mass card. Oh, nice. Everyone will check 10th mass card. Okay, then what happens? You will say, oh, I will
So, so that indicates that how you studied in the 10th exam. अच्छा डिस्टिंक्शन स्कोर करे तो उन्हें शाबाशी देती, ओ शाबाश, गुड बॉय गुड बॉय. फेल हो गया तो फूल का हाथ पिनाती. नहीं. व्हाट एल्स? और कोई बोलना चाहते कुछ? Why you believe class 10th is a turning point? You? No. Okay, wait. All right, I will wait. No problem. और कोई बोलना चाहता है? आप बोलेंगे? नहीं? ये लोग बहुत मुस्कुरा रही. आप बोलती थी? नहीं? और कोई वॉइस? You? हाँ. Sorry? 10th के बाद बोलती? Okay, fair enough. No problem. ठीक है. बात करो. मैं आपका दोस्त हूँ, भाई, right? So you can आराम से बोल सकते हो. Actually, sir, तुमने बोला कि class 10 is a turning point. हाँ. तो बोलते ही मैं I did not agree with it. Good. You're with me. Fine. Okay. Why you don't agree with it? Because जैसे कि हर चीज को एक स्टॉप रहता है. Okay. इसके वास्ते मिटा देंगे बिलीव करेंगे. अब बोल नहीं सकते कि पास होते फेल होते. बहुत सारे जने पास होते हैं, बहुत सारे जने फेल होते हैं. Okay. उसके वास्ते डोंट फर्स्ट क्लास. उसके बाद जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है. Fantastic. I love the way he, put everything together. I think that's really good thought process. और कोई बोलना चाहती हो? And I will give answers to every thought. आपने जवाब दिया, आपने जवाब दिया, आपने जवाब दिया. I will give answers to every thought. So even I believe that class length is not the Okay, fair enough. And why do you believe? because grades, intelligence is more important than grades. Okay, even Albert Einstein said intelligence is important, but imagination is more important than intelligence. Okay, fair enough. What else? That's it? Okay. ठीक है. Here और कोई शेयर करना चाहते हैं? Why you believe it's the most important turning point of your life? No one? No one? Talk to me when I ask questions, okay? Mentally prepare ho jao. I'm not looking for the right answer or the wrong answer. No, I want to understand what you're thinking because I am here today to change the way you think, okay? All right, so thank you so much. I truly appreciate what you said, both boys and girls, and I truly echo what you said. When I say echo, that means I agree what you said. Both are right. आपने जो कहा वो भी सच है और आपने जो कहा वो भी सच है. But we need to understand the reality in itself. तो अब हम जो है सच्चाई को खोजने की कोशिश करेंगे. क्या आप मेरे साथ हैं? Are you ready? Right. I said I don't believe class 10th is a turning point, and you said you believe class 10th is a turning point. In life, जिंदगी में 3 टर्निंग पॉइंट्स आते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स आते हैं. नंबर 1, लिसन टू मी. पहले मैं ये बता दूं कि हर दिन जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है. इट्स नॉट ओनली द क्लास 10th. हर दिन जिंदगी का, आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट डिफाइन करता है. समझ में आ रहा है? आपका ये गोल है, आप डॉक्टर बनेंगे, पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, एक बेहतरीन से बेहतरीन बिजनेसमैन बनेंगे, या फिर पॉलिटिशियन बन सकते हैं, मिनिस्टर भी बन सकते हैं. राइट? आई डोंट नो बिकॉज आई कैन नॉट सी योर फ्यूचर. मैं खुद का नहीं देख सकता, कोई भी नहीं दे सकता, बट आई एम श्योर एंड कॉन्फिडेंट आपका एक ड्रीम है, सपना है, गोल है. राइट? राइट? हाँ, आपका उस गोल को रीच होने के लिए हर दिन आपको उस गोल को रीच होने के लिए उसके हिसाब से मेहनत पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है? So every single day is the turning point of your life. The more focused you are on your goal today, tomorrow, day after, every single day, the closer you will reach your goal. ठीक है? फोकस्ड रहना है, उसके पीछे मेहनत पड़ना है. अभी इमीडिएट गोल क्या है आपका? The immediate goal of each one of you is to pass the class 10th exam. है कि नहीं? Agree? तो सारे टीचर्स मिलकर क्या क्या कर रहे हैं? आपके पीछे क्यों पड़े हैं?
कि पास हो पास हो पास हो पास हो। पास होना बहुत जरूरी है क्लास 10। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई यू हैव टू पास क्लास 10 इज बिकॉज आपने नर्सरी से क्लास 10 तक आने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले हैं, राइट? मैंने से पापड़ बेले हैं, आपके पेरेंट्स ने और आपने बहुत मेहनत की है। आप जब नर्सरी में आए थे मेरे हिसाब से 3 या 3.5 साल के थे बच्चे, राइट? अब आज जो है आप इतने थे, अब इतने हो गए हैं। इट्स अ जर्नी दैट टुक यू फ्रॉम हियर टिल हियर, फ्रॉम 3.5 years to maybe 15 or 16 years today, राइट? और उसके पीछे किसकी मेहनत है? आपके पेरेंट्स की, आपकी खुद की मेहनत है। एंड आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स? मैक्स टू मैक्स मिनिमम 13 years। कोई फेल हुआ, ये हुआ, वो अलग चीज है, बट 13 years स्टैंडर्ड है। आपने मेहनत की है यहां तक आने के लिए। अगर आज 10th क्लास में आप फेल हो गए तो किसका मिस्टेक है? वो किसका मिस्टेक है? पेरेंट्स ने जो करना था वो सब कुछ किए आपको। एक अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, यू हैव टू बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपको अच्छा खाना खिला रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, अच्छे घर में हैं, आपको जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो सारे फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं। क्या आपके पेरेंट्स कभी आपको कहा कि हे जाओ बाहर जाके आप डेली इतना कमा के लेकर आओ? आपको कहा किसी ने? नहीं। वो चाहते हैं, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करके कामयाब बन जाएं, राइट? आप अच्छे से एक बेहतरीन से बेहतरीन इंसान बन जाएं। ये पेरेंट्स का बेसिक ड्रीम है कि मेरा बेटा या बेटी अच्छा पढ़ाई करके एक बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छा और सच्चा ईमानदार इंसान बन जाए। ये हर एक माँ बाप का एक सपना होता है। बस उस सपने को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है? आपको मेहनत करना है। फॉर द नेक्स्ट 2 months इंशाल्लाह यू विल पास योर एग्जाम। कोई चैलेंज नहीं है। अगर एक चैप्टर में आप 3 या 4 क्वेश्चंस भी मेमोराइज कर लेंगे, अगर 10 चैप्टर्स है तो आप 20 से 50 क्वेश्चंस आप याद कर लेंगे, आराम से पास हो जाएंगे। इट्स नॉट अ चैलेंज नाउ, इट्स वेरी इजी। हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट में से, हर एक चैप्टर में से आपको क्या करना है? कम से कम 4 या 5 सवालों को याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। अगर उतना कर लेंगे फॉर द नेक्स्ट 1.5 month, आई थिंक इट्स कब कितना टाइम है? 1 month इज लेफ्ट, राइट, फॉर द एग्जाम टू स्टार्ट। मार्च 18 से स्टार्ट हो रहा है, 33 days left. He's counting the days. That means he knows something is coming and he has to prepare for what's coming. That's the exam. Right? आप मेरे साथ हैं? Are you with me? तो आपको चाहिए कि फोकस रहे, मेहनत पड़े, ताकि जो है आपके माँ बाप और आप खुद इतने से यहाँ तक जो जर्नी पास किए हैं, तो इम्पोर्टेंट है कि उसको जाया ना होने दें, उसको वेस्ट ना होने दें। इससे क्या करना है आपको? मैं क्या बोला? कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस आपको याद करना है हर एक चैप्टर में। हर एक सब्जेक्ट में से जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में 4 या 5 सवाल याद कर लेंगे तो आराम से आप फर्स्ट क्लास अचीव कर सकते हैं। दिस इज समथिंग आई कैन टेल यू, और उतना डिफिकल्ट नहीं है, इट्स इजी, कर सकते हो आप। क्योंकि आप लास्ट 13 years पढ़ाई करके यहां तक आए हो ना, तो आपका जो ब्रेन है वो आपको सपोर्ट करेगा अगर आप कोशिश करेंगे तो। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपको चाहिए कि आपको कोशिश करें। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। आप क्या आपके अम्मी अब्बू का नाम रोशन करना चाहते हैं? तो ये फर्स्ट स्टेप है आपके अम्मी अब्बू का नाम रोशन करने के लिए और उनको शर्मिंदा ना करने के लिए आपके घराने में या खानदान में या फिर मोहल्ले में। डू यू एग्री विथ मी? आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हर एक चैप्टर में से टीचर्स बोलेंगे, हे ये चैप्टर में ये 4-5 सवाल आप पढ़ लो, काफी है, फर्स्ट क्लास आ सकते हो आप उतना ही फोकस।
सब कुछ भूल जाओ, उतना ही फोकस रहना है ताकि जो है कम से कम आप जो है फर्स्ट क्लास ला सके। अगर आप फर्स्ट क्लास ला लेंगे तो क्या होगा, आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, वरना आलतू फालतू कॉलेज में जाएंगे और वहां पर आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकते, तो जिंदगी में आपके डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। तो मैं बोल रहा था टर्निंग पॉइंट। तो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी का कब है मालूम? First turning point of your life is when you get the first salary. First turning point कब है आपका जिंदगी का? जब आपके जिंदगी में आप पहला सैलरी लेंगे ना, पहला सैलरी, चाहे आप एक एम्प्लॉय बन के लेंगे या फिर एक खुद बिजनेस ओनर बन के आप जो पहला प्रॉफिट उठाएंगे ना, पहला सैलरी उठाएंगे ना, वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। समझ में आ रहा है? एक बच्चा है, आपका नाम क्या है? आपका नाम इब्राहिम, प्लीज कम हियर। आप इधर आइए और आप इधर आइए। अभी ये जो आपका क्लासमेट है, राइट, इन्होंने क्या किया? अब आप इनकी जिंदगी को, इनके गोल और ड्रीम्स को सीरियसली लेकर एवरी सिंगल डे इज अ टर्निंग पॉइंट एंड देन ही सीरियसली स्टार्टेड फोकसिंग ऑन हिज गोल एंड ड्रीम्स। एंड ये मेहनत डेली करता था, डिसिप्लिन से, फोकस से, और हमेशा गोल के हिसाब से अचीव करने के लिए मेहनत करता था। जब ये बच्चा 10th में डिस्टिंक्शन लिया, मोर देन 90%, मोर देन 95% स्कोर किया, तो इसको टॉप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिला। जब ये टॉप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया तो ये उसके बाद में पीयूसी के बाद में ये बच्चे ने क्या किया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना शुरू किया। अगर ये डॉक्टर क्या बनना चाहते हैं आप? अच्छा, ये क्रिकेटर बनना चाहते हैं, राइट? तो इन्होंने क्या किया, क्रिकेटर के साथ क्या बनेंगे? बिजनेसमैन बनेंगे। फैंटास्टिक। तो ये क्रिकेटर, इनका एक पैशनेट गोल है, फॉर एग्जांपल क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो ये क्या करेंगे, एक टॉप जो क्रिकेट एकेडमी है जो बच्चों को स्टेट लेवल, नेशनल लेवल रिप्रेजेंट करती है, वहां पर ज्वाइन करेंगे। वहां पे ज्वाइन होना उतना आसान नहीं है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर केपेबल ऑफ प्लेइंग अ फैंटास्टिक गेम, तब जाकर। ओके, ठीक है जी। अब ये एमबीए करेंगे, फॉर एग्जांपल बिजनेस में जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, फैबुलस, नो प्रॉब्लम, यू शुड डू इट। तो एमबीए जाएंगे, आलतू फालतू कॉलेज में नहीं जाएंगे, बिकॉज ही वांटेड टू टॉप इन एवरी क्लास। तो ये टॉप करे पीयूसी में, उसके बाद में एंट्रेंस दिए, उसके बाद में डिग्री में टॉप किए, उसके बाद में टॉप इंस्टीट्यूशन में एमबीए किए, तो क्या होगा, इनका माइंडसेट जो है टॉप बनेगा, टॉप क्लास माइंडसेट बनेगा। जब ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये टॉप क्लास बिजनेस करेंगे और इनका फर्स्ट पे चेक रहेगा, प्रॉफिट चेक रहेगा, तो इनका क्या होगा, ये 10,000 20,000 नहीं होगा, करोड़ में हो सकता है। तो फर्स्ट प्रॉफिट इनका करोड़ में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनका टर्निंग पॉइंट बनेगा जिंदगी का, कि इनका लाइफ जो है यहां से यहां चले जाएगा स्टैंडर्ड। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। और ये बच्चा है, आप क्या बनना चाहते हैं? ठीक है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं यहाँ पर आपके स्कूल में, फेयर इनफ। तो ये क्या किए, तो थोड़ा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सीरियस नहीं है, आप सीरियस नहीं लेना है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो ये 10th में, चलो भाई क्या पढ़ना, सब पढ़ को क्या करना, सब बिजनेस करे तो जिंदगी में क्या भी कर ले जाए, एक सोच है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम बच्चों की ऐसी है ना, तो इन्हें क्या करे, पढ़ाई को इग्नोर करे, पढ़ना लिखना को इग्नोर करे, उसके बाद में एक एवरेज कॉलेज में गए, वहां भी आराम से टाइम पास करने को, खेलने को, कूदने को, नाचने को, ऐसा आराम से टाइम पास करने को गए। उसके बाद में डिग्री को गए, वहां भी एकदम लो क्लास कॉलेज को गए, वहां पे ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, वहां पे सिर्फ टाइम पास करना, खेलना कूदना, नाचना फिरना, घूमना, यही होता है, ये सारा करते थे। और उसके बाद में एमबीए करना, भी बिजनेस करना, तो करके फॉर एग्जांपल एमबीए भी गए, जैसे कि आलतू फालतू कॉलेज में गए, वहां भी बेकार टाइम पास, क्या भी सीखे नहीं जिंदगी में। जब एक बिजनेस शुरू करें, बिजनेस शुरू करें, तो क्या हुआ, बिजनेस में फुल लॉसेस हुआ, और इनके फर्स्ट प्रॉफिट क्या हुआ, 10-20 हजार रुपए। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर,
ये टैलेंट का प्रॉब्लम है, नॉलेज का प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉलेज ऐसा जबरदस्त गेन करे, उस नॉलेज को अप्लाई कर कर नंबर 1 बिजनेसमैन बने। नॉलेज से पीछे भागे टाइम पास करे, तो इनके पास नॉलेज नहीं था बिजनेस को रन करने के वास्ते, तो इनका बिजनेस प्रॉफिट में नहीं बल्कि लॉसेस में गया। और फर्स्ट पे उठाया कितना 20-30 हजार रुपए। जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? यस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन योर फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। इसके साथ साथ जब आपका फर्स्ट टर्निंग पॉइंट बनता है, फर्स्ट सैलरी फॉर एग्जांपल, समझ ली ये बिजनेस से फॉर एग्जांपल डॉक्टर या इंजीनियर कुछ बनना चाहते हैं, राइट? समझ लीजिए डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे फॉर एग्जांपल, राइट? तो ये टॉप इंस्टीट्यूशन में गए, फर्स्ट सैलरी इनका आ गया एक फॉरेन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में गए, हॉस्पिटल में गए फॉर एग्जांपल, वहां पर इनको एम्प्लॉयमेंट मिला, तो फर्स्ट सैलरी इनका आ गया 2 करोड़ रुपए। कितना? 2 करोड़ पर एनम। तो महीने का इनका आ गया 15 से 18 लाख रुपए एवरी मंथ ही इज अर्निंग। टर्निंग पॉइंट, तो इन्हें एक टॉप इंजीनियर बने, आईआईटी को गए, आईआईटी में इंजीनियरिंग करें और इनका भी सैलरी 2 करोड़ रुपीस आ गया। कितना? 2 करोड़। लास्ट मंथ हमारे हैदराबाद में, लास्ट मंथ हैदराबाद में एक लड़का आईआईटी हैदराबाद से फाइनल ईयर में उसको एक फॉरेन कंपनी आके ऑफर दिए, उसको एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी दिए। उसका पैकेज कितना मालूम? 2.4 करोड़। कितना? 2.5 एक्चुअली 2.5 करोड़, न्यूज़पेपर पे सभी आया है। 2.5 करोड़ फॉरेन में सेटल्ड बच्चा हो। क्या भाई? अभी टॉपर्स बने, फॉर एग्जांपल फेलियर बने, एवरेज कंपनी में गए 20-30 हजार रुपए कमा ले को, वहां बढ़ ले कोई टॉप कंपनी में गए 2 करोड़ 3 करोड़ कमा ले को, मस्त जिंदगी कर रही। तो इनकी जिंदगी में कौन आती भाई? और एक टर्निंग पॉइंट आता है, शादी। क्या है? पहला जो है फर्स्ट सैलरी इज अ टर्निंग पॉइंट। सेकंड टर्निंग पॉइंट क्या है? शादी, मतलब लाइफ पार्टनर। अब इनके जिंदगी में कैसे लाइफ पार्टनर आती? इनके हिसाब से, इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट होती। क्या? इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से एक अच्छे पढ़े लिखे, एक जबरदस्त लाइफ पार्टनर इनकी जिंदगी में आते। तो क्या होता है इनकी जिंदगी? खूबसूरत खूबसूरत बेहतरीन जिंदगी बच्चे इनकी। समझ में आया? और फॉर एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल ओके, दिल पर मत लियो। एग्जाम्पल देखो, मैं ले लेता हूँ। मैं क्लास में 10th क्लास में केयरलेस था, पीयूसी में भी केयरलेस था, एवरेज कॉलेजेस को गया, ये डिग्री को गया, एवरेज कॉलेजेस को गया, और हायर स्टडीज में एवरेज इंस्टीट्यूशन को गया, और मुझे जॉब होना तो कंपनीज आई, अगर मुझे इंटरव्यू ली तो मैं इंटरव्यू में क्या की, एक गोलमाल कर को क्या आपने भी स्टोरी बना को बोल डाले। तो उन्होंने बोले ओके फाइन है, काम तुम ना तो तुम ना 20,000 रुपए सैलरी पर मंथ कैसा आती पूछती हूँ। अब मैं नो चॉइस, अब मुझे नहीं भी मुझे 20 लाख रुपए देकर तो देते नहीं, कौन भी होता है दुनिया में, कौन भी देता नहीं। ये तो मेरे पास वो नॉलेज भी है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो टैलेंट भी है। सो आई लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, तो आई हैव टू सरेंडर। ठीक है भाई, क्या किए ओके फाइन कर, तो हमें सही ले तुमने ऑफर लेकर लगा, कंपनी को गए, कंपनी को जाकर तुम्हें 1 महीना मेहनत पड़ती, 20,000 रुपए आती। जब वही 20-30 पे जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चा अब 20-30 में 20,000 रुपए लेकर एक बार में मेरा खर्चा हो जाता है, खाली खाने पीने को हो जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है ना, 20,000 रुपए हो जाता है। अब अम्मी अब्बा तो इतना बड़ा बच्चा कैसा तेरी शादी करवा ली कर को रिश्ते ढूंढने जा रही है। कहाँ इनको रिश्ते खाली अनाउंस करे तो कहते 100 रिश्ते आ रही है, कि मतलब 2-3 करोड़ रुपए कमा रही ना भाई, टॉप क्लास की 100 रिश्ते आ रही है। अब फुल डिमांड, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, फुल डिमांड। अब भाई तेरा फेलियर 20,000 रुपए रख ले को, अब मेरे अभी अब क्या करें?
मेरा प्रोफाइल पेज देखो भाई हमारा बच्चा आया पढ़को है था इतना पढ़े करको जाता है क्या बाद में छोकरी की अम्मा बाबा देखती है वो देखने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है छोकरा बहुत हैंडसम है अच्छा पर्सनालिटी है खूबसूरत है पर मैं एक सिंपल सवाल पूछती हूँ इसे जो हती ना अलायंस जोड़ने वाले क्या बोलती मदावत बोलती हूँ मदावत बोलती नहीं राइट मदावत बोलती हाँ तो उनको पूछती अच्छा छोकरा क्या करता है करके पूछती छोटी के घर वाले छोकरा वो कंपनी में काम कर रहा है ओ, क्या काम कर रहा है? अच्छा ये काम कर रहा है कितना सैलरी 20,000 रुपए कट फोन कट कर वाले 20,000 20,000 कमा को इन्हें बंदा खुद के पेट को नहीं पाल सकता उन्हें वो वक्त में आई एम टॉकिंग अबाउट 2030 अब भी मसाल डोसा 100-150 रुपए है अब तुम्हें वो आए तक का 300-400 रुपए हो जाता है मसाल डोसा क्या भाई राइट तो ऐसा जमाना आ रहा है तो तुम्हें वो फ्यूचर के वास्ते तुम्हें प्रिपेयर होना कब से प्रिपेयर होना आज से अब से बिकॉज एवरी डे इज अ टर्निंग पॉइंट नहीं तो क्या हो जाता है ढूंढती काम गए तो भी रिजेक्ट सब पे रिजेक्ट कर रही अब मैं तंग आ गई अरे कौन ते भी काम ते भी करता लो अम्मी अबू को बोल उन्हें गए कोचे की खेड़े को कान की खेड़े में अच्छे बची हो उन्हें पढ़ को लिखो नहीं रहती उसे जिंदगी के बारे में तो मालूम नहीं रहता फॉर एग्जाम्पल राइट हाई वैसे भी राइट अच्छे समझदार भी और एकदम अब मैं बेवकूफ निकला पढ़ को भी बेवकूफ पढ़ा लिखा बेवकूफ नहीं राइट कि तो नॉलेज नहीं इंफॉर्मेशन नहीं टैलेंट नहीं कुछ भी नहीं मतलब पढ़ा लिखा बेवकूफी से नहीं तो इन पढ़े लिखे क्या इंटेलिजेंट जीनियस बने मैं पढ़ लिखो मैं क्या हुआ बेवकूफ बना तो एक बेवकूफ को इंटेलिजेंट टैलेंटेड नीचे की छोकरी एक अच्छे खानदान के अम्मा बाबा उठा देती क्योंकि बेटी को नहीं उन्हें भी ये ऐसे अच्छे नहीं उन्हें भी ऐसा छोड़ लेकर उसके नजर में मैं हीरो मैं जिंदगी में जीरो हीगा लेकिन उसके नजर में मैं हीरो तो उन्हें जीरो समझ में रहे हैं तो इट्स ए वेरी सीरियस थिंग ये फर्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या है फर्स्ट सैलरी तुम्हारा योर सैलरी डिफाइंस योर लाइफ आपकी जिंदगी का फ्यूचर जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है इट्स इंपॉर्टेंट आप यहां पर आए हैं हाउ डू यू थिंक दैट हैपेंड व्हाट मेड इट पॉसिबल because your parents were able to afford to this institution अब जितना भी आप पे कर रहे होंगे फीस जितना भी पे कर रहे होंगे और बहुत ऐसे लाखों बच्चे इस लोकेलिटी में हैं शायद वो ऐसे स्कूल को नहीं आ सकते व्हाई बिकॉज दे डोंट हैव द फाइनेंस उनके पास पैसा नहीं है अफोर्ड करने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशन को आने के लिए समझ में आ रहा है पैसा इज इंपॉर्टेंट मनी इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ बट मनी इज नॉट एवरीथिंग जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए जिंदगी में अच्छी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए क्या चाहिए पैसा बहुत जरूरी है तो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट है आपका पहला सैलरी अब मेरा सवाल है आप क्या चाहते हो आप आपके जिंदगी में पहला प्रॉफिट या सैलरी कितना चाहते हैं एक नंबर बोलिए एक महीने का नंबर बोलिए 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 20 लाख वेरी नाइस या इट्स गुड आप कितना चाहते हो कितना कुछ हाँ कितने में कुछ अच्छा 1,000 रुपए मिले तो खुश रहो वैसा नहीं रहना है यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योरसेल्फ कॉम्प्रोमाइज मत करो अभी से वो गोल सेट करो मैं एक एग्जांपल देता हूँ हमारे टीम में एक प्रिंसिपल है ओके एक प्रिंसिपल है और वो हैदराबाद से यहाँ पर बैंगलोर में आकर सेटल्ड है और एक मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल में इंटरनेशनल स्कूल में प्रिंसिपल है उनका बेटा एक रियल एग्जांपल है अभी भी वो फाइनल ईयर में है बच्चा हुआ IISC बैंगलोर है ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर वहां पर बीटेक कर रहा है बच्चा हमजा है उसका नाम बच्चा लास्ट ईयर अक्टूबर में सितंबर और अक्टूबर में वो बच्चा जो है अमेरिका को गया इंटर्नशिप को अपना जो टैलेंट है उसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए या प्रैक्टिकल एक्सपोजर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए
एक महीने के लिए इंटर्नशिप गया बच्चा वो, ठीक है। कहां पर गया? अच्छा, चांद पर कौन गए पहले? उस बंदे का नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा सब, पर्डू यूनिवर्सिटी। कहां है वो? अमेरिका में पर्डू यूनिवर्सिटी बोलकर है, वहां पर गया बच्चा वो 1 मंथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ प्रोग्राम, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ का इंटर्नशिप प्रोग्राम, जब बच्चा इंडिया को आया तो इंटर्नशिप का वो कुछ इंसेंटिव्स दे दी। इंटर्नशिप करे ना कर को क्या कर दी, सब नहीं जा सकते, जो इंटेलिजेंट है उनको बुला दे, सो उनको क्या करे, बच्चे को इंसेंटिव दिए। कौन दिए? सो यूनिवर्सिटी वाले। 1 महीने में कितना दिए? क्या इमेजिन कर सकते हैं आप कितना दे बोल रहे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना दे सकते हैं? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ओके। 1 महीने का इंटर्नशिप का इंसेंटिव 80 लाख। कितना? 80 लाख रुपए इंसेंटिव यूनिवर्सिटी वालों ने उस बच्चे को दिए। कैसा पॉसिबल हुआ? क्योंकि उस बच्चे ने खूब मेहनत पड़ी, टॉप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया। उतना आसान नहीं होता है, लेकिन मेहनत करने से हो जाता है। हर एक जिंदगी में हर एक चीज मुश्किल है, लेकिन उसके ऊपर मेहनत करने से वो मुश्किल चीज आसान हो जाती है। वो बच्चा ने क्या किया? इंटर्नशिप प्रोग्राम किया, 1 महीने का 80 लाख रुपए लेकर आया। अभी उसी सेम यूनिवर्सिटी से उस बच्चे को पीएचडी का ऑफर मिला है, 4 इयर्स का प्रोग्राम है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन सम मोस्ट हैपनिंग टेक्नोलॉजी। जैसे मैं एग्जांपल दिया, एक लड़का हैदराबाद में कितना पैकेज मिला उसको इस साल? 2.5 करोड़ पैकेज उसका। ये बच्चा सिर्फ इंटर्नशिप के लिए गया, 1 महीने के बाद आ गया तो 80 लाख रुपए उन्होंने इस बच्चे को दिए। अभी वो पीएचडी करेगा बच्चा, तो जस्ट इमेजिन वहां का पैकेज कितना होगा, उस बच्चे का लाइफस्टाइल कैसा होगा। ये आपको सोचना है, ये आपको समझना है। क्या आप एक मामूली से मामूली इंसान बनकर रहना चाहते हैं, एजुकेटेड इडियट बनकर रहना चाहते हैं, या फिर वेल एजुकेटेड इंटेलिजेंट जीनियस बनकर आप एक जबरदस्त खूबसूरत जिंदगी बनाना चाहते हैं? द चॉइस इज योर्स, because you are responsible for your life. Who is responsible for your life? It's you and only you. Thank you so much. Please take your seat. Can we have a big round of applause to these 2 beautiful boys? कौन है आपकी जिंदगी का रेस्पॉन्सिबल? आपकी जिंदगी की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? Who is responsible for your life? आप आपकी जिंदगी में आप मेहनत करते हो, आप डिसिप्लिन रहते हो, आप फोकस्ड रहते हो, आप कमिटेड रहते हो, आप कॉन्फिडेंट रहते हो, आप कम्युनिकेट करते हो, कोलैबोरेट करते हो, आप पढ़ते हो, लिखते हो, समझते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, एक्सप्लोर करते हो, रिसर्च करते हो। इन सारे चीजों का रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन है? आप खुद हो। आप जितना मेहनत पड़ोगे आपके गोल के ऊपर, ड्रीम के ऊपर, आप उतना बेहतरीन से बेहतरीन अचीव कर सकते हो। वरना क्या होगा? आप भी एक एवरेज इंसान बनोगे, तो आपकी जिंदगी में भी आपका जो फ्यूचर लाइफ पार्टनर है वो भी एवरेज ही रहेगा। आप सपना देखने के लिए कुछ भी देख सकते हो, लेकिन व्हाट इज द रियलिटी? इफ यू आर एवरेज, योर लाइफ पार्टनर विल बी एवरेज। If you become the best, then you will attract the best in the world and the hereafter. बेस्ट बनने के लिए क्या करना है? आपकी सोच को बेस्ट बनाना है, आपके जज्बात को बेस्ट बनाना है, और आपके एक्शंस को बेस्ट बनाना है। आपके एक्शंस को बेस्ट बनाने के लिए पहले आपकी सोच को बेस्ट बनाना है। पहले आपको सोचना है, नो मैटर व्हाट, आई एम गोइंग टू बिकम द बेस्ट इन माई लाइफ एंड आई एम गोइंग टू अचीव द बेस्ट इन माई लाइफ।
The moment you decide that, then you will become unstoppable in your life. When you become unstoppable in your life, then you will achieve the best of the best in every walk of your life. Are you with me? Yes. If you can, you can. If you cannot, trust me, you cannot. It's your choice, it's your decision, it's your dedication, it's your commitment, it's you who is responsible for your life. Result आने के बाद में you don't blame your parents. Result आने के बाद में you don't blame your teachers. Result आने के बाद में you don't blame your friends. Result आने के बाद में you don't blame the environment. No, no, no. You have to blame yourself. बिकॉज जो भी रिजल्ट आप लाएंगे उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स सब कुछ कर रहे हैं ताकि जो है आप स्कूल जाकर अच्छा पढ़ाई करें। आपके टीचर्स सब कुछ आपको दे रहे हैं, आपको टीच कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं, ताकि जो है आप आपके एग्जाम में पास हो जाएं। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप आपकी जिंदगी को एक अच्छी, बेहतर, खूबसूरत बनाए। आपके टीचर्स चाहते हैं ताकि जो है आप मेहनत पढ़ के आज, कल, परसों एग्जाम तक अच्छा स्कोर करके एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके और आपकी जिंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बना सके। अगर आप आपकी जिंदगी को आपकी मुट्ठी में नहीं लेंगे तो क्या होगा? आप आपकी जिंदगी को आपकी मुट्ठी में, आपके कंट्रोल में नहीं लेंगे तो क्या होगा? आपकी जिंदगी को कोई और कंट्रोल करने वाला हो जाएगा। जैसा कि मोबाइल गेम्स, मोबाइल फोन, टेक्नोलॉजी, बहुत सारे चीजें हैं, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। The moment you take control of your life, then nobody can destroy your life unless you say yes. The moment you take the ownership, the moment you take control of your life, then you will be focused, you will be committed, you will be dedicated, and you will start working towards your dream every single day. Every single day. It's very, 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 very important. समझ में आ रहा है? Now who is responsible for your life? कौन? I, me, myself. Who is responsible for your life? I, me, myself. Nobody else. So, from today, are you ready to take the ownership of your life? Are you ready to be the real owner of your life? Are you ready to take the right decisions in your life? Are you ready to make the right choices in your life? Are you ready to work hard? Are you ready to stay committed? Are you ready to stay focused on your goals? Are you ready? Who is ready? Raise your hand. Can I ask you to stand once? I just want to make sure that you are back. Please stand. Take a deep breath. Take a deep breath. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Take a deep breath. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Great. Please sit. I will do one quick exercise. Okay, I will do one quick exercise. Now, I want you to support yourself. I want you to support yourself. Okay? Now, please put your spine straight. Please put your spine straight and listen to me carefully. Listen to me very, very carefully. हमारी जिंदगी में दो पर्दे हैं। एक पर्दा वो है जब हम आंख खोलते हैं तो हमारे आंख के सामने ये सारी दुनिया दिखती है। एक पर्दा है, इट्स ए स्क्रीन। ओके, जब हम आंख क्लोज करते हैं तो हमारे में एक माइंड में एक स्क्रीन होता है, मेंटल स्क्रीन। ठीक है? I want everyone now to close your eyes and listen to me carefully. Please close your eyes. On your mental screen, close your eyes. On your mental screen,
I want you to see your mummy. आपके अम्मी जान को आप देखिए. On your mental screen, I want you to see your daddy. आपके अब्बू जान को देखिए. If you are able to see your mummy and daddy, just nod your head. Are you able to see? Yeah. Fantastic. Now, listen to me carefully. In front of you, there is a beautiful you dressed in a beautiful dress. Now see yourself in front of you, who is dressed beautifully, looking beautiful, amazing, very, very confident. And he's happy, he's excited, he's successful. बहुत कामयाब इंसान बन चुके हो आप. आपके सामने आप खुद आपको देख रहे हो, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे अंदाज से ड्रेसिंग किया है और बहुत ही कामयाब इंसान बन चुका है. और आपको मिलने के लिए आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके मोहल्ले वाले सारे लोग आ चुके हैं और आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपके साथ सेल्फीज ले रहे हैं और बोल रहे हैं, वाह कितना सक्सेसफुल बच्चा है, कितना सक्सेसफुल बच्ची है, और शाबाशी दे रहे हैं और बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि बेटा हो तो ऐसा, डिस्कस कर रहे हैं, बोल रहे हैं दोस्त अहबाब से, बोल रहे हैं आपके पेरेंट्स से, बोल रहे हैं दूसरों के पेरेंट्स को कि बच्चा हो तो ऐसा, बच्ची हो तो ऐसी, बच्चा हो तो ऐसा, बच्ची हो तो ऐसी. आप बहुत खुश हो और आप अपने आप पर बहुत प्राउड फील कर रहे हो, क्योंकि आपने आपकी जिंदगी में, स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में बहुत मेहनत की हो, बहुत मेहनत की हो. आप टॉपर बन चुके हो, आप टॉपर बन चुके हो और आपका फर्स्ट जो टर्निंग पॉइंट है आपकी जिंदगी का, वो फर्स्ट सैलरी है और आपका फर्स्ट सैलरी जो है वो करोड़ में है. और आप देखो फर्स्ट सैलरी जो है वो करोड़ में है और आप ये खूबसूरत जिंदगी जो है आपके पेरेंट्स को दे रहे हो. आपके पेरेंट्स के जो छोटे छोटे सपने हैं, ड्रीम्स है, उसको फुलफिल कर रहे हो. आप आपके पेरेंट्स को हज को भेज रहे हो, उम्राह को भेज रहे हो और आपकी जिंदगी में आप बेहतरीन से बेहतरीन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो. आप आपके घर वालों को हेल्प कर रहे हो, आपके रिश्तेदारों को हेल्प कर रहे हो. आप आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में एक रोल मॉडल बन चुके हो. आपका नाम न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स में आ रहा है और सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं, आपको शाबाशी दे रहे हैं और आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स में बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं और आपकी बात को सुनने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे बेचैन हैं. और आपकी जिंदगी की कहानी, स्ट्रगल्स, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारा चीज आप उन बच्चों को आप बोल रहे हो और उनको बोल रहे हो कि यस यू कैन डू इट. आपको सिर्फ डिसिप्लिन रहना है, मेहनत करना है और टाइम टेबल फॉलो करके आपको आपके गोल्स
के ऊपर फोकस्ड रहना है, कमिटेड रहना है, हार्ड वर्क रहना है। और सब ऑडियंस में सारे बच्चे, पेरेंट्स सब खुश हैं, आपको सुन रहे हैं और क्लैप्स मार रहे हैं। They are clapping for you. They are clapping for you, and you are feeling so happy about it. And you feel that you achieved the purpose in your life of helping your family members, helping your relatives, helping your friends, siblings, and everybody. एंड नाउ आप जो है आपके सामने आपके बेटर वर्जन को देख रहे हो, आपके बेहतरीन इंसान खुद को आप देख रहे हो। अभी जो है आप अपने आप से आपके सामने जो सक्सेसफुल अपने आप को देख रहे हो, आप स्लोली आप उसको हैंडशेक कीजिए, उसको बोलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई विल बिकम बेटर देन यू। मैं भी आपसे ज्यादा कामयाब इंसान बनूंगी और मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगी और जिंदगी में बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट्स अचीव करूंगी, बेहतरीन से बेहतरीन इंसान बनूंगी, सच्चा और ईमानदार इंसान बनूंगी और बेहतरीन से बेहतरीन लाइफ पार्टनर के साथ बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी मैं गुजारूंगा और गुजारूंगी। Say thank you. Say thank you to your better version. Say thank you. Say thank you to yourself. And come with the thought that you from today are going to fulfill the dream, are going to become the best of the best in your life. अगर आप हैंडशेक कर चुके हैं तो आपके बेटर वर्जन को आप जाने दीजिए और अब slowly आप वापस आइए। Come back to this classroom, come back to this training and slowly come back, open your eyes और rub your palms, rub your palm, rub कीजिए, yes, fantastic, rub कीजिए। Now आपके फेस को rub कीजिए, yeah, great, super. So you can see yourself in the future. You can see yourself in the future. अपने आप को देखिए, ये कामयाब इंसान जैसा देखिए, right? You need to do that. It's a very powerful technique. It's called as visualization. It's a very, very powerful technique. If you do this every single day, then आपकी सोच बदलेगी। क्या बदलेगा? आपकी सोच बदलेगी। जब आपकी सोच बदलेगी, आपके जज्बात बदलेंगे। जब आपके जज्बात बदलेंगे तो आपकी जिंदगी में आपके एक्शंस बदलेंगे, राइट? एक्शंस बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप 8 बजे उठने वाले थे, तो अभी क्या है, आप 5 बजे उठना स्टार्ट करोगे, राइट? आप 2 घंटा पढ़ते थे, लेकिन अभी जो है 5 घंटा पढ़ना शुरू करोगे। आप डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, अभी जो है आप सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करोगे और आप फोकस्ड रहोगे और डिसिप्लिन रहोगे और कोशिश करोगे कुछ भी हो जाए मैं कामयाब इंसान बनूंगी और कोशिश करोगे कि मैं यस आई थिंक आई कैन स्कोर डिस्टिंक्शन, राइट? सो यू विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स स्कोरिंग डिस्टिंक्शन। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. So I think कुछ arrangement हो रहा है. Let it happen. Meanwhile, I will do a quick question and answer session. Then we will switch to the PowerPoint and then we will discuss more things about the learning process and how to prepare for an examination. ठीक है? कुछ सवाल आते हैं किसी के?